Namaskar bachcho. Today we are going to learn how to prepare a comprehensive problem in respect of oversubscription of company account. Right? In the previous class we learned the journal entries and treatment. Now today we are going to learn to solve a problem using working notes. Working notes use करके problem को solve करने वाले हैं. ठीक है? Let me remind you, what is oversubscription? When we received more number of shares than issue, then it is called oversubscription. We issued 10,000 shares, but we received 15,000 shares. So how many excess shares we received? We received 5,000 shares excess, right? So how to deal with the excess shares? We have three options, you know. What are the three options are there? First, we can reject the excess application, right? Second option is we can adjust the excess application money to the next call or allotment. Third, we can do both. Partly we adjusted and partly we refunded. Right? Let me remind the journal entries we learned in the previous class. What journal entries we learned? This is the normal entry. Share application account debit to share capital is the normal entry. In case of oversubscription, and in that oversubscription we want to reject. So we have to write here to bank. Excess को हम reject कर रहे हैं. How many received? 15,000 received. 10,000 excess only issue. Excess we received 5,000. We reject. In case of excess of applications received and we reject the same, then we have to credit the bank account. Clear? In case of adjustment of excess money, then we have to write to, come on, what is that? To allotment. Right? What is the third case? Here we are adjusting some shares and some adjusting and refund some shares. Then you have to write both to bank. So this, the entry will be application account debit to share capital, for the adjustment to allotment, in case of refund to bank. So there are three options, right? Now I am going to give a problem in respect of oversubscriptions. I am just going to read the problem and take the snap of the problem. Come on. Yeah. A company invited applications for 50,000 equity shares of rupees 10 each, payable as follows. On application, rupees 3, on allotment, rupees 3, on first and final call, rupees 4. Applications were received for 1,10,000 shares. It was decided, first option, to refuse allotment to the applicant of 10,000 shares. Second category, to allot 50% to Mr. X who has applied for 20,000 shares. Third category, to allot in full to Mr. Y who has applied for 10,000 shares. Fourth category, to allot balance of the available shares on pro rata basis among the other applicants. To utilize the excess application money in part payment of allotment and final call. Give journal entries till the stage of allotment, assuming that the entries sums due on allotment is received in full. Okay. So here, just note the key important points in the questions. What are the important key points placed in the questions? Just note it down. How many shares were issued? The shares were issued is 50,000 shares were issued. How many shares were issued? 50,000. Clear? Okay. What is the face value of the share? The face value of the share is 10 each. 10 each. Right. Now, the amount may be received in 3 installments. What are they? 3 on application, 3 on allotment, and 4 on first call. Application, allotment, and first call. Clear? Okay. Now, how many shares were received? 1,10,000. How many shares were issued? 50,000 only. But how many shares we received? 1,10,000. It means we received excess of 60,000 shares, isn't it? कितना हम लोग एक्स्ट्रा रिसीव कर चुके हैं?
60,000 शेयर से एक्स्ट्रा रिसीव कर चुके हैं। इसलिए डायरेक्टर डिसाइड किए कि फर्स्ट 10,000 शेयर्स को रिफ्यूज कर दे। दे वांट टू रिफ्यूज फर्स्ट 10,000 शेयर्स, राइट, एंड दे वांट टू अलॉट ओनली 50% ऑफ द शेयर्स टू मिस्टर एक्स, राइट, एंड टू मिस्टर वाई they decided to allot full in full. How many shares we applied by Y is allotted full to Y and the balance will be allotted on pro rata basis. ऐसा दिया हुआ है। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, सर कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कुछ कंफ्यूजन है सर, कैसे हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे। सो एंट्री में हम प्रोसीड करने का पहले ये इस तरह प्रॉब्लम में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तभी हम लोग माइंड क्लियर आइडिया मिलेगा कि कितना पैसा हम अप्लाई किए थे, कितना एप्लीकेशन का है, कितना अलॉटमेंट का है करके हम लोग आइडिया मिलेगा। सो वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट ऑन दैट when there is a confusion and when there is a complex procedure of allotment, then we have to prepare a separate working note. So while after preparing working note, we can get a clear idea, clear picture about how shares were applied and how the shares were disposition be made in allotment and first call, right? So let me explain the columns. The first column you have to write categories. How many categories are there? There are 4 categories, no? Category 1, category 2, like that. We write categories and then we have to write applied. Under that category, how many shares were applied, how many shares we allotted to them. And after that, application received, that is applied into application money. So how many application money received, and then how the money is distributed among the shared capital, allotment and first call. So this is the format of working notes. Let me explain with this, right? So go to the first category. What is given in the category? To refuse allotment to the applicant of 10,000 shares. So they want to refuse, they want to reject. So category 1, they want to reject, right? So how many shares they applied actually? They applied 10,000 shares, but unfortunately the company could not able to allot the shares, so we didn't make any allotment. They applied means they sent money, application money with this. So 10,000 into 3, application money is 3. No, so 10,000 into 3, we received 30,000 rupees, but we could not able to allot. So the money will not be used for the company's purpose. So what do we do? We have to refund the money. Whatever money we got, we received, that money should be refunded because we didn't allot them. So we have to refund 30,000. जो पैसा हम लोग रिसीव किए उनको हम लोग शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग अलॉटमेंट किए ही नहीं, so यूज़ नहीं करने का बात ही नहीं बन रहा है. So we have to, whatever money we received, that money should be refunded through bank. Clear? Okay. What is the second category? Under second category, go through the question. The Mr. X, no, Mr. X who applied for 20,000 shares, we allot only 50% of the shares. So how many shares is applied? X applied 20,000 shares applied. How many shares are allotted? We allotted only 10,000 shares. The answer is this. He applied for 20,000 shares, but we could able to allot only 10,000 shares. So कितना पैसा हम लोग रिसीव किए होंगे X से? 20,000 into 3 कितना होगा? 60,000 रिसीव कर चुके हैं. But the problem is we could not able to allot full. We able to allot only 50%. That is 10,000 only we able to allot. So 10,000 को ही हम लोग यूज करेंगे. So 10,000 into 3 ये पैसा एप्लीकेशन का मनी में ऐड हो जाएगा 30,000. How many money is sent? 60,000 rupees. How many money we able to use? Only 30. So 30,000 rupees यूज कर लिए, 30 बच गया है. So क्या करेंगे? That money may be used for the next installment. Mr. X जो बांधा है पैसा 60,000 rupees, उसमें 30,000 को यूज कर पाए हम लोग. बैलेंस 30,000 rupees को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? मिस्टर एक्स को दोबारा बांधना पड़ेगा पैसा अलॉटमेंट में, वो पैसा में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट. ठीक है? वी रिसीव 60,000 rupees,
but we issue only 10,000 shares, 10,000 into 30 only used for that money. The balance money will be used for the next installment only. Okay, so you need not to pay 30,000 rupees in allotment. The balance amount you can pay only, right? Next category is third category. Under third category, go through the question. In the third category, it is given that Mr. Y allotted in full. To allot in full to Mr. Y who is applied for 10,000 shares is given. So जो 10,000 shares apply किया कौन Y उनको उतना ही दे दिए. He applied for 10,000 shares and we allotted full, means we allotted full 10,000 shares. So कितना पैसा रिसीव हुआ होगा? 30,000 रिसीव हुआ होगा. 10,000 into 3 30,000 एंड यहाँ लिखते बाद इश्यू से इस अलॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10,000 into 3 30. सो कोई एक्स्ट्रा पैसा हम लोग रिसीव नहीं किए. कितना पैसा भेजा था वाई, वो सारा पैसा हम लोग यूज़ कर लिए कंपनीज का. इसमें एक्स्ट्रा पैसा इसमें हम लोग रिसीव नहीं किए. राइट, दिस कैटेगरी 3 हो गया. कैटेगरी 4 में देखिए, टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट. सो इनका अलावा जो रेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है वो कितना अप्लाई किए हैं, उनका प्रो रेटा बेसिस में अलॉट करना है हम लोग को. सो रेस्ट कितना होगा? क्वेश्चन में कितना एक्चुअली अप्लाई किए थे? 1,10,000 अप्लाई किए थे ना. 1,10,000 में इतना इश्यू हो चुका है, मतलब 1,10,000 में 10 रिजेक्ट हो चुका है, 20x को दे दिए और y जो है 10,000 है. बाई बैलेंस कितना होगा? 70,000 जो है बचा हुआ है रेस्ट में. अलॉट कितना हुआ टोटल? 50,000. 50 में 20x को दे दिए, x और y को 20 दे दिए, बैलेंस बचा कितना है? 30. कैसे में निकाला? अप्लाइड दिया होता क्वेश्चन में दिया है अप्लाइड 1,10,000, अलॉटेड कितना है? 50,000. सो माइनस कर दीजिए. 1,10,000 से तीनों को माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा. और 50 में 20 को माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा. मतलब इनका अलॉट करने के बाद बचा इतना शेयर्स है. 70,000 शेयर्स अप्लाई किए थे बाकी शेयर होल्डर्स, उनको हम लोग कितना दे पाए? ओनली 30,000 शेयर्स ही दे पाए. ठीक है. अब यहाँ पर कौन सा मोड आएगा बताइए, क्या करना है आपको? यू हैव टू मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी विथ अप्लाइड. एप्लीकेशन मनी विथ अप्लाइड. द एप्लीकेशन मनी इज 3, द अप्लाइड इज 70,000. सो 2,10,000 रिसीव किए होंगे. बट वी कुड नॉट एबल टू अलॉट दैट मच शेयर्स. हाउ मच वी अलॉटेड? वी अलॉटेड ओनली 30,000 शेयर्स. सो क्या करना पड़ेगा? 30,000 इंटू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 90,000. 2,10,000 money we received from the rest of the shareholder, but unfortunately we could not able to allot full. We had used only 90,000 shares. So how much is left? कितना बच गया है? उसको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. सो अभी देखिए 2,10,000 में 90 तो यूज कर दिए और बचा कितना है? 1,20,000 बचा हुआ है. 1,20,000 बचा हुआ है. ये पैसों को हम लोग क्या करेंगे? आने वाला अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में यूज करेंगे. ठीक है. सो आने वाला अलॉटमेंट में कितना जरूरत पड़ेगा? इश्यू इनटू अलॉटमेंट. सो 30,000 इंटू 3 90,000. सो अवेलेबल अमाउंट कितना है? 120. 120 में अलॉटमेंट के लिए 90 यूज हो चुका है. सो बचा कितना है? 30,000. ये पैसा कहाँ यूज होगा? फर्स्ट कॉल में यूज होगा. ये पैसा फर्स्ट कॉल में यूज होगा. यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अवेलेबल पैसा रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है. 3 4 12 120 जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है? 30 बचा हुआ है. ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखना पड़ेगा. राइट. सो 2,10,000 रुपीज वी रिसीव्ड, we use only 90,000 rupees. The balance amount will be used for the further installment. So further installment क्या है? 90,000 को फुल यूज कर लिए, बचा 30 ही बचा है. वो 30,000 रुपीज को हमने फर्स्ट कॉल में यूज कर लिए. फर्स्ट कॉल में जो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर जो है 30,000 रुपीज देने की जरूरत नहीं है. बचा बैलेंस अमाउंट कुछ होने से बनना पड़ेगा. राइट. सो रिफंड यहाँ पर कुछ नहीं है. सो कैटेगरी में बना लिए, इसको टोटल करना है अभी. यू हैव टू टोटल. So how many shares were applied? 1,10,000 shares applied.
How many shares are allotted? 50,000 allotted. Okay. How many shares, how many applications were received? We received 3,30,000. How many applications were transferred to share capital? How much? 1,50,000. 1,50,000. Right. How many shares were transferred to allotment? 1,20,000 shares. ना एप्लीकेशन का बचा वाला पैसा को हम लोग पहले ही अलॉटमेंट के लिए पैसा हम लोग ले चुके हैं, और फिर फर्स्ट कार के लिए एडवांस ले चुके हैं हम लोग 30,000 रुपीज़. रिफंड कितना हुआ है? 30,000 रुपीज़. ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो है सेकेंड एंट्री में यूज होगा. जब एंट्री का अमाउंट हम लोग भरेंगे तब ये सारा डेटा जो है सेकेंड एंट्री में यूज होगा. राइट, ध्यान से नोट कर लीजिए. ये टेबल पर सीख जाएंगे. कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स आपको इजी पड़ेगा, ये तो करना मुश्किल है. ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपको ऑटोमेटिकली इजीली समझ में आ जाएगा. राइट, सो लेट मी सॉल्व journal entry now. Right, so this is journal entry in the books of a limited, a company name is not given here. The first column, you know, date, then particulars, ledger folio, debit amount, and then credit amount. Right, so start problem. What is the first entry? First entry is very simple. You know what is that? Bank account debit to share application. So write the entry first. Bank account debit to share application, to equity share application account. Right, what is the first entry? Bank account debit to equity share applications. Right, so amount कैसा होगा, कौन सा अमाउंट लिखेंगे? ये नो. आप जो वर्किंग नोट भी दे सकते हैं, वर्किंग नोट में दिया, वर्किंग नोट में देखिए कौन सा कॉलम वर्किंग नोट का एप्लीकेशन रिसीव दिया हुआ, देखिए 3,30,000 दिया हुआ है, isn't it? वो अमाउंट डायरेक्टली आप ले सकते हैं. नहीं, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? 1,10,000 shares received into application money, that is 3,30,000. Right, bank account debit to equity share application, 3,30,000. How we receive that amount? That is application money into applied shares. Right, so narrations क्या होगा? Being application money received on 1,10,000 shares at the rate of 3 each. Application money received. Right, सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है. मैं बताया आपको वर्किंग नोट की इसलिए हम लोग किए थे. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू. वर्किंग नोट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. वर्किंग नोट देखिए क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल लिख दिए हम लोग. फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ? अलॉटमेंट दिया हुआ है, राइट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट. फिर देन क्या दिया हुआ है? टू कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, यू कैन राइट कॉल्स इन एडवांस. लास्ट कॉलम क्या है? टू रिफंड, बैंक दिया हुआ है, टू बैंक अकाउंट. सेकेंड एंट्री करने के लिए हम लोग वर्किंग नोट किए. सो बिना वर्किंग नोट को सेकेंड एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है. राइट, सो एंट्री कर दिए. अमाउंट कैसे लिखेंगे? वर्किंग नोट देखिए, फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा? 3,30,000 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,30,000 रुपीज एप्लीकेशन का मनी. इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. शेयर कैपिटल में कितना दिया हुआ है? सी द वर्किंग नोट, 1,50,000 इज गिवन शेयर कैपिटल, दैट इज 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी. Then say allotment, 1,20,000 is given according to working note. And how much money is just in calls? 30,000, that is calls in advance. And how much we refunded? We refunded 30,000.
क्लियर? राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री. एंट्री क्या होगा? बीइंग application money transferred to share capital and the remaining amount is adjusted or transferred to share allotment to cause in advance and the balance is refunded करके नरेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. क्लियर? सो ये मेन था, ये टफ था, इसीलिए हम वर्किंग नोट की, ये हम लोग सीख गए. राइट. सेकेंड पार्ट क्या है? एप्लीकेशन तो हो चुका है. सेकेंड पार्ट अलॉटमेंट है. अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करिए, शायद आपको याद होगा. याद है? वेरी गुड, बता दिए. क्या बताए आप? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना अमाउंट आएगा? अप्लाइड इज 1,10,000. अप्लाइड का कोई रोल नहीं है यहां पर. इश्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इश्यू इनटू अलॉटमेंट मनी. इशू कितना किए हैं? 50,000 शेयर्स. अलॉटमेंट मनी इज 3, सो 1,50,000 शेयर्स ड्यू है. इतना पैसा हम लोग मिलना बाकी है. सो नरेशन क्या होगा? ट्राई करिए. बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू. बीइंग ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच. ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट एंट्री लिखिए. क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आपको एग्जाम में फुल लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ स्पेस का कमी है कारण मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. आपको फुल लिखना पड़ेगा. कैसे लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके फुल लिखना पड़ेगा. राइट. अमाउंट कितना है यहाँ पर? कितना ड्यू है? 1,50,000 रुपीज ड्यू है. वेदर ऑल द मनी वर रिसीव्ड? एज इट इज गिवन, ऑल द मनीज वर रिसीव्ड. सो यहाँ पर कितना आएगा? 1,50,000 मिलना था. 1,50,000 में यहाँ देखिए ये अलॉटमेंट दिया हुआ है. 1,50,000 में 1,20,000 पहले ही मिल चुका है. एप्लीकेशन के एक्सेस पैसा को पहले ही हम लोग क्या कर चुके हैं? क्रेडिट कर चुके हैं अलॉटमेंट को. सो कितना अभी भी बाकी है? ओनली 30,000 इज लेफ्ट. सो एप्लीकेशन में एक्सेस पैसा मिल चुका था, वो पैसा को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं. कितना एडजस्ट कर चुके हैं? वी ऑलरेडी एडजस्टेड 1,20,000 शेयर्स. आउट ऑफ 150 वी ऑलरेडी रिसीव 1,20,000. सो हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? वी हैव ओनली 30,000 शेयर्स, 30,000 रुपीज आर लेफ्ट टू रिसीव्ड. राइट. being allotment money received on 50,000 shares. राइट. अलॉटमेंट भी हो चुका है. नेक्स्ट बताइए क्या एंट्री होगा? फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा. फर्स्ट कॉल का एंट्री बताइए. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. अमाउंट क्या करना है आपको बताइए? याद रखिए अप्लाइड को ओनली एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, बाकी जो इंस्टॉलमेंट है इशू से ही मल्टीप्लाई करना है. इशू कितना दिया हुआ है क्वेश्चंस में? 50,000 शेयर्स इशू किए हैं. सो फर्स्ट कॉल का मनी कितना है? 4 रुपीज. सो 50,000 इंटू 4 कितना होता है? 2 लाख. सो 2 लाख ड्यू है. फर्स्ट कॉल थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना मिलना बाकी है? 2 लाख मिलना बाकी है. सो नरेशन लिखिए क्या होगा? ट्राई. बीइंग first and final call money due on 50,000 shares at the rate of 4 each. Clear? Right. अभी रिसीव एंट्री होगा. रिसीव एंट्री कैसा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट. या देखिए फर्स्ट कॉल में भी कुछ पैसे हम एडवांस ले चुके हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट कॉल है, यहाँ पर कॉल इन एडवांस है. सो एडवांस को क्या यहाँ क्या किए? पहले हम रिसीव कर चुके हैं, जो क्रेडिट किए हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा. टू दैट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट. राइट. फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू है? 2 लाख ड्यू है. 2 लाख यहां लिख दीजिए. राइट. एडवांस में कितना ले चुके हम लोग?
30,000 ले चुके हैं। सो राइट 30,000 ये 2 लाख माइनस 30,000 कितना हम लोग रिसीव किए होंगे 1,70,000। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट calls in advance account debit to share capital, so to share first call account, right? This is the entry. ये एंट्री में आपको ये सब पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री टफ था, हम लोग वर्किंग नोट करना पड़ा, वर्किंग नोट करके हम लोग ये करना पड़ा। सो सेकेंड एंट्री हम लोग से क्या सीखे हम लोग, विदाउट प्रोवाइडिंग विदाउट मेकिंग वर्किंग नोट वी कांट एबल टू मैनेज द सेकेंड एंट्री इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। In case of simple, no need to prepare working note. In case of complex distributions, then we have to need to prepare working note, right? यहाँ पर next problem क्या होगा, next process क्या है हम लोग का, ये तो हम लोग सीख गए हैं। इसमें यदि कोई शेयर होल्डर्स पैसा दे नहीं पाए तो क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ टर्म्स है इसके लिए, याद है प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े। If any shareholders fail to pay his due money on particular call, what it is called? ट्राई करिए। यस, कॉल्स इन अरियर, सुने ना, याद है ना आपको? तो कॉल्स इन अरियर, जब इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, हाउ टू डील विथ कॉल्स इन अरियर, उसको डील करने के लिए उसके लिए अलग से एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे हाउ टू डील विद द कॉल्स इन अरियर एंड वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट वर्किंग नोट फॉर द पर्टिकुलर शेयर होल्डर, राइट? मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको आप ट्राई करिए, राइट? I'll just read the question now. KD Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each, payable as follows: 3 on application, 5 on allotment, and balance on first and final call. Applications were received for 82,000 shares. The director resolved to allot as category दिया हुआ है, applicant of 30,000 shares, 20,000 shares, applicant of 50,000 shares, 40,000 shares, applicant of 2,000 shares, nil. Ramesh, who had applied for 900 shares in category A, and Suresh, who allotted 600 shares in category B, failed to pay allotment money. Calculate the amount received on allotment. एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव हुआ कैसे दिया हुआ है, बट वी फॉर प्रैक्टिस वी गोइंग टू प्रिपेयर फुल जर्नल एंट्रीज एज यूजुअल, नॉर्मल वे में हम लोग करने वाले हैं। सो आपको काम क्या है यहाँ पर कॉल्स अरियर आप नहीं कर पाएंगे, सो आप यहाँ पर वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट ट्राई करिए। जो कैटेगरी ए बी सी दिया हुआ है ना, वो ए बी सी को जो फॉर्मूला हम लोग जस्ट प्रीवियस क्लास में जस्ट फर्स्ट सेशन में सीखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको आप पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप लोग फिलअप करके कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कितना रिजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन के बिना कंपनी अकाउंट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। सो हाउ टू डील विद ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, हाउ मेनी शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड and what or category is given or not. If it is category is given, whether we have to prepare working note or not, need not, the जो simple problem में working note करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर complex procedure है redistribution में, वहाँ करना है। यहाँ पर जहाँ पर simple problem है वहाँ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये KD का प्रॉब्लम में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही कैटेगरी दिया हुआ है, सिंपल कैटेगरी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिना वर्किंग नोट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वर्किंग नोट तो टेबल फॉर्म में सीख गए, और जब कॉल्स इन अरियर से एक वर्किंग नोट होता है, वो वर्किंग नोट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। बस सीखने के पहले अभी मैं एक फॉर्मेट को याद करने बोलूँगा, अभी उसको याद करिए। क्या है, पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स शेयर होल्डर है, अप्लाइड दिया होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड निकालना पड़ेगा। इफ इट इज अलॉटेड इज गिवन, देन आपको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या करना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट इज अप्लाइड
इनटू एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, कितना एक्चुअली एप्लीकेशन मनी चाहिए, कितना है, अलॉटेड से एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो बैलेंस अमाउंट है यहां पर माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। फिर देन ये बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, आने वाला अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहां नेक्स्ट क्या होगा, लेस अलॉटमेंट ड्यू, दैट इज अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा वो पैसा कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर। क्योंकि मिस्टर एक्स, मान लीजिए एग्जांपल में मिस्टर एक्स जो है ज़्यादा अप्लाई किया था, उसको उतना हम लोग दे नहीं पाए, सो उनका पैसा एक्स्ट्रा बच गया, इतना पैसा, ये पैसों को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके थे। एडजस्ट करने के बावजूद कुछ पैसा बचा हुआ था बांधने के लिए, पर्टिकुलर बंदा बांध नहीं पाया, सो वो कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, सो व्हेन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसा वर्किंग नोट हम लोग करना पड़ेगा। सो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आ गए। सो ये फॉर्मेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाउ टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर हम लोग सीखने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।